بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیسکو نے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو نے 3 کیٹیگریز میں لوڈ شیڈنگ کا پلان تیار کیا ہے۔ عید الفطر کے بعد شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں کمرشل اور صنعتی سیکٹر بند ہونے کے باوجود لیسکو کی ڈیمانڈ 3400 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ دونوں سیکٹر کھولنے پر کمپنی میں بجلی کی کھپت 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر جائے گی، جس پر وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو 3 کیٹیگریز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرے گی۔ 20% تک لائن لاسز والے فیڈرز لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہوں گے۔ اسی طرح 30% تک فیڈرز پر 3 جبکہ 40% تک 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ لیسکو کے 40% سے زائد لائن لاسز والے علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ 28 مئی سے لیسکو کیٹیگریز کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دے گی۔ ادھر پنجاب میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے آج سے مارکیٹس، بازار اور شاپنگ مالز کے اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ ہفتے میں 4 دن مارکیٹس اور بازار کھلے رہیں گے، جبکہ 3 دن لاک ڈاؤن رہے گا، جبکہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر کل جاری کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پنجاب حکومت نے مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار کا شیڈیول دوبارہ تیار کر لیا۔ ہفتے میں 4 دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مالز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلیں گے، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار لاک ڈاؤن رہے گا۔ بیکری 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اشیاء خورنوش کی دکانیں ہفتے میں 7 دن صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ میڈیکل سٹور ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جمعرات کو جاری ہوگا۔ مارکیٹس اور بازار ہفتے میں 4 روز کھولنے کے فیصلے پر تاجروں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ عید کے بعد کاروبار کھولنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں، لیکن حکومت پورا ہفتہ بازاروں اور مارکیٹس کو کھولنے کی اجازت دینے کے ساتھ اوقات کار میں بھی اضافہ کرے۔ حکومت نے عید کے بعد مارکیٹوں اور بازاروں کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے کرنے کا اعلان تو کر دیا، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 21 مئی کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس کے مطابق مارکیٹیں اور بازار صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب حکومت ایک مرتبہ پھر سے مارکیٹوں کے اوقات کار میں تبدیلی کر رہی ہے، جبکہ مارکیٹیں پورا ہفتہ بھی نہیں کھولی جا رہی، جو کہ غلط ہے کیونکہ کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ کرونا نے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اگر ایسا کسی ایک چیز کو چھوڑیں گے ہم تو وہ ہم پر ہیوی ہو جائے گی۔ اگر ہم کرونا کو چھوڑتے ہیں تو وہ ہم پر ہیوی ہو جائے گا۔ اگر ہم تجارت کو چھوڑتے ہیں، وہ اس ملک کی معیشت آگے تباہ ہو چکی ہے، اس کو بربادی سے بچانے کے لیے تمام ٹریڈ کو اجازت دی جائے کہ وہ 7 بجے تک دکانیں کھولے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے صدر حاجی طاہر نوید کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے معیشت کی بہتری کے لیے عید کے بعد کاروبار کی اجازت اچھا فیصلہ ہے، تاہم حکومت مارکیٹوں اور بازاروں کی اوقات کار میں اضافہ کرے اور پورا ہفتہ کاروبار کرنے کی اجازت دے۔ ہم تاجر برادری کی طرف سے حکومت کی اہلکاروں اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم صبح 9 بجے سے شام 5 بجے کے بجائے شام 8 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت حکومت سے لے لیں گے منظوری۔ اس کے علاوہ حکومت صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت پورا ہفتہ صبح 9 سے 8 بجے تک کاروبار کی اجازت دے تاکہ لوگوں کا کاروبار چلے اور ملکی معیشت میں بہتری آ سکے۔ حسن علی، سٹی 42۔ لگژری آئٹمز والی بیکریز کا دورانیہ رات 10 بجے جبکہ گروسری سٹورز کا دورانیہ 5 بجے تک محدود۔ لاہور سپر سٹورز گروسری ایسوسی ایشن حکومت پر برس پڑی۔ سپر سٹورز کی ٹائمنگ رات 10 بجے تک کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عید الفطر کے بعد شہر کے 200 سے زائد سپر سٹورز تو کھل گئے، لیکن سپر سٹورز کا دورانیہ 5 بجے کرنے کے بعد شدید گرمی کے باعث اکا دکا گاہک ہی نظر آئے۔ شہری سپر سٹورز کی ٹائمنگ 5 بجے تک محدود ہونے پر حکومت پر برس پڑے۔ اس کو لوگوں کو فیسلٹی دینی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ خود 5 بجے کاروبار سے واپس آتے ہیں، تو 5 بجے آگے جو اسٹور بند ہوں گے تو ہم کیا سامان خریدیں گے۔ اس کو مقصد ہے کہ میکسیمم ٹائم کیا جائے کم از کم 10 بجے تک، تاکہ جتنا جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہوگا رش جو ہے کم ہوگا۔ کم ٹائمنگ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پینک کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سٹورز پہ رش ہو جاتا ہے۔
लाहौर सुपर स्टोर ग्रोसरी एसोसिएशन ने भी सुपर स्टोर्स खुलने का दौरानिया 5 बजे तक महदूद होने पर शदीद तनकीद की। सदर मोहम्मद अहमद नवाज ने कहा कि बेकरियां लग्जरी आइटम्स में आती हैं, वो तो 10 बजे तक खोल दी, जबकि सुपर स्टोर्स जहां से बुनियादी इशाए जरूरिया मिलती हैं, उनका दौरानिया शदीद गर्मी में 5 बजे तक महदूद कर दिया। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम हमारा टाइम भी बेकरियों के मुताबिक 9 to 10 किया जाए, ये भाम नहीं होना चाहिए। लाहौर सुपर स्टोर ग्रोसरी एसोसिएशन ने कहा कि सुपर स्टोर्स का दौरानिया रात 10 बजे तक करने से ही शहरी शदीद गर्मी से बचकर बुनियादी इशाए जरूरिया खरीद सकेंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के 506 सीरियस मरीज इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। 96 मरीज इंतहाई निगरान वार्ड में दाखिल हैं, जबकि 32 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना वायरस का फैलाव बदस्तूर जारी, हर गुजरते दिन के साथ नए केसेस में इजाफे के अलावा अब अस्पतालों में सीरियस मरीजों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। कोरोना वायरस के 327 मरीज सरकारी और 179 मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों में 28 मरीज ICU में दाखिल हैं, जिनमें से 20 की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्राइवेट अस्पतालों में 68 मरीज ICU में जेर इलाज हैं, जिनमें से 12 वेंटिलेटर पर हैं। 74 रोज के दौरान शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। उधर पंजाब पुलिस में 3 दिनों में मजीद 50 कोरोना वायरस के मरीजों का इजाफा हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में मुलाजमीन की तादाद 607 हो चुकी है। लाहौर पुलिस मुतासरा अजला में पहले नंबर पर। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने सूबे भर में कोरोना वायरस के हवाले से ड्यूटीज देने वाले मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद करंटीना सेंटर्स, एहसास प्रोग्राम्स और नाकों पर ड्यूटी सरंजाम देने वालों के टेस्ट कराने का अमल तेज कर दिया गया। अब तक कराए गए टेस्टों में मौसूल होने वाले नताइज में मरीजों की तादाद 607 हो गई है, जिसमें 190 पुलिस अफसर और अहलकार सेहतियाब हो गए हैं। 412 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 16,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब तक के मौसूल होने वाले नताइज में 2580 के नताइज का इंतजार है, जबकि 13,000 से ज्यादा के नेगेटिव आए हैं, जबकि 3 अहलकार कोरोना वायरस की वजह से शहादत हासिल कर चुके हैं। IG पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज कराया जा रहा है। कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दे रहे हैं। और सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद खालिद शेरदिल की नमाज जनाजा पंजाब सिविल ऑफिस में अदा की गई। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। सियासी और समाजी शख्सियात की सिटी 42 हेड ऑफिस आमद। शहीद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की सिटी 42 हेड ऑफिस आमद। PIA हादसे में शहीद होने वाले डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और दीगर शोहदा के लिए दुआ की। दुआ में शेख शाहिद, नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, राव शहाबुद्दीन, शेख अली शाहजेब, डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम, सीनियर असाइनमेंट हेड सैयद जैनुल आबिदीन, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी, इरफान मलिक और इमरान यूनुस समेत दीगर शामिल थे। MPA ख्वाजा
इमरान नज़ीर का कहना था कि अंसार नकवी एक नेक और शफीक इंसान थे। उनकी शहादत शोबा सहाफत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अल्लाह पाक तैयारा हादसे में शहीद तमाम अफराद के खानदानों को सब्र जमील अता करे। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम मेंबरान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अंसार साहब जो थे कम गो, खुश अखलाक, साहिब बसीरत और साहिब इल्म सहाफ़ियों में मैं उनको शुमार करता था। खामोश खड़े रहते थे, हल्की सी स्माइल, जब कोई बात करते थे बड़ा अच्छा जवाब देते थे। इस ईद पर PIA का त्यारा क्रैश हुआ और हमारे प्यारे साथी उसमें अल्लाह ताला को प्यारे हुए। यकीन करें कि वो पूरी कौम को उदास कर गया। और जहाँ तक बात अंसार नकवी साहब की है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को क्लेम करता हूँ कि मैं सिटी फैमिली का हिस्सा हूँ, अंसार नकवी जैसा हलीम और बेहतरीन शख्स मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक और MPA कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना में मुब्तला होने वाले MPA का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। मज़कूरा MPA PKLI में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। तो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक और MPA कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। मुब्तला होने वाले MPA का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, जबकि MPA PKLI में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कोरोना मरीजों की कोई भी दवा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मंजूरी के बगैर ना देने का फैसला किया गया है। इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान शाहिद, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, डॉक्टर ताहिर खलील, डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर फारूक सुल्तान और डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के शदीद अलील मरीजों में मौसर इंजेक्शन टेसिलीजुमैब का तमाम टीचिंग अस्पतालों में स्टॉक यकीनी बनाने के लिए खरीदारी का अमल शफाफ तरीके से फौरी मुकम्मल किया जाए। इजलास में हिदायत की गई कि कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मंजूरी के बगैर कोरोना वायरस के मरीजों को कोई दवा तजवीज़ न की जाए। लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे 190 पाकिस्तानियों की वाघा बॉर्डर से वापसी। पाकिस्तान रेंजर्स ने पंजाब की टीम ने पाकिस्तानी शहरियों को डिसइंफेक्ट किया और कोरोना टेस्ट किए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने वाघा बॉर्डर जीरो लाइन पर पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। लॉकडाउन के बायस भारत में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर आज दोबारा खोला गया। भारत में लॉकडाउन के बायस 190 पाकिस्तानी मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए थे। पाकिस्तानी शहरियों की जांच पड़ताल के बाद ग्रुप्स की सूरत में पाकिस्तान एंट्री शुरू हो गई है। भारत के शहर गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और दीगर शहरों में फंसे पाकिस्तानी गुज़श्ता शाम अमृतसर पहुँच गए थे। पाकिस्तान आने वालों की स्क्रीनिंग के बाद मुख्तलिफ करंटीना सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा। भारत में फंसे पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से दरखास्त की थी कि पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। और अब्बास शहर के मौसम की सूरज का पारा आज भी हाई रहा। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी है। चिलचिलाती और झुलसा देने वाली धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़कर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि रात को भी पारा कम ना हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दिन के औकात में लू भी चली। हवा में नमी का तनासुब कम होकर 36% रह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की रात बारिश का सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा, जो जुमे और हफ्ते के रोज बारिश बरसाने का बायस बनेगा। जुमेरात के रोज सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहरी शदीद गर्मी में बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें ताकि लू लगने से महफूज रहें। तो मौसम के साए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। ठंडे ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाते रहे। सूरज ने आंखें दिखाई और पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो गर्मी के सताए शहरियों ने नहर को गनीमत जाना। शहरियों ने बच्चों के हमरा ठंडे पानी में डुबकियां लगाई और गर्मी भगाई। शहरियों का कहना है कि नहर में नहाने से गर्मी का एहसास कम हो जाता है। हमने तो नहर पर नहाने आना, घर में तो लाइट आ नहीं रही, हम फिर क्या करें, नहर पर ही आते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है, नहर पर ही आना चाहिए हमें।
कोरोना वायरस के बाद शहर के सब वाटर पार्क्स बंद हैं, इसलिए शहर के बीच गुजरने वाली नहर शहरियों के लिए नेमत है। कैमरामैन अब्बास भट्ट, कैमरा फरहान यामीन, सिटी 42। ईद की छुट्टियों के दौरान पार्क्स और दीगर तफरीही मुकामात बंद, मगर शहरियों की बड़ी तादाद ने नहर को पिकनिक पॉइंट बना लिया। 3 रोज बाद लाहौर पुलिस को शहरियों को नहर पर नहाने से रोकने का ख्याल आ ही गया। लाहौर पुलिस की जानिब से नहर की हुदूद में आने वाले 10 थानों ने शहरियों को वापस घरों में भिजवाने के लिए इकदाम किए। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि शहरियों के नहर पर नहाने पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। शहरी कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र हुकूमती पाबंदी की खिलाफ वर्जी हरगिज ना करें। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि लाहौर पुलिस नहर पर नहाने पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन ले रही है, जिसके लिए पुलिस की खुसूसी टीमें नहर के साथ साथ मुसलसल पेट्रोलिंग कर रही हैं। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर मस्जिदुल हराम में तमाम चीज़ों का साया नहीं रहा। सऊदी अरब में सूरज का ये नज़ारा 12:18 पर देखा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी वक्त दोपहर 2:18 पर सूरज ऐन काबा के ऊपर से गुजर गया। दुनिया भर के मुसलमानों को किबले की दुरुस्त सिमत के तयन का मौका मिला। पाकिस्तानी वक्त दोपहर 2:18 पर मस्जिदुल हराम में मौजूद तमाम चीजों का साया नहीं रहा। दुनिया भर में हर जानदार व बेजान अशिया के सायों का रुख बैतुल्ला शरीफ की तरफ था। यही वो वक्त था जब सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर था और मक्का मुकरमा से बाहर दुनिया भर के मुसलमानों को किबले की दुरुस्त सिमत के तयन का मौका मिला। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने लंबी छड़ी या राड की मदद से किबले के रुख का तयन किया। जदीद तहकीक के मुताबिक खाना काबा जमीन के ऐन मरकज में वाक़ है, इसीलिए जब सूरज अपनी गर्दिश मुकम्मल करते हुए खाना काबा के ऊपर पहुंचता है तो इसका साया नहीं रहता। इस साल दूसरी बार ये मौका 15 जुलाई को 2:26 पर आएगा। हैंड सैनिटाइजर आपको कोरोना वायरस से तो बचा देगा, मगर गाड़ी में रखा हैंड सैनिटाइजर कितना नुकसानदेह हो सकता है, बता रहे हैं वकार घुम्मन अपनी रिपोर्ट में। हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको गाड़ी में रखते हैं तो आप किसी और बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। आइए इस बारे में आज आपको बताते हैं। आजकल तकरीबन हर शख्स हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा है। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल समेत कुछ ऐसे महलूल इस्तेमाल होते हैं जो बराह रास्त सूरज की शुआओं, हीट और जलाने से आग पकड़ लेते हैं। स्क्रीन पर मनाजर एक ऐसी गाड़ी के हैं जो धूप में खड़ी रही और इसमें पड़ी सैनिटाइजर की बोतल को आग लग गई। कोशिश करें हैंड सैनिटाइजर को डैशबोर्ड या किसी ऐसी जगह पर ना रखा जाए जहां पे बराह रास्त सूरज की शुआएं पड़ती हों, बल्कि इसको किसी कपड़े में लपेटकर या गाड़ी की सीट के नीचे रख दिया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ वकार गुम्मन, लाहौर। पंजाब हुकूमत के वुज़रा की कारकर्दगी के मामले पर तो वुज़रा को कल से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। पंजाब काबीना के वुज़रा को कारकर्दगी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा कराने की हिदायत दी गई थी, जिसकी मुद्दत जुमेरात को खत्म होगी। ईवान वज़ीर आला से काबीना अरकान को जुमेरात से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई। ज़राए का कहना है कि कारकर्दगी रिपोर्ट में सूबाई वुज़रा ने अपने महकमों में क्या किया सब बताने के पाबंद है। रिपोर्ट में वुज़रा को बताना होगा कि अवामी मुफाद में कितने मंसूबे शुरू किए, अवाम के मसाइल को हल करने में क्या किरदार रहा, सब शामिल होगा। रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन से वुज़रा सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते रहे, सब अवाम के सामने लाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब पहले खुद कारकर्दगी का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस की अदायगी समेत गाड़ियों के मुतालिका दीगर मामलात के हवाले से सूबे भर में एक्साइज के 9 दफातर आइंदा मंगल के रोज से काम शुरू करेंगे। माल रूम्स खोलने की समरी भी DG एक्साइज ने हुकूमत को भिजवा दी है। एक्साइज मोटर ब्रांच कल की बजाय आइंदा मंगल के रोज खोलने का फैसला किया गया है। DG एक्साइज चौधरी मसूदुल हक का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में मोटर ब्रांचेस के सिर्फ 9 दफातर खोले जाएंगे, जबकि बाकी तमाम दफातर हुकूमती अहकामात के बाद खोले जाएंगे। लाहौर में 2 और दीगर रीजन्स में मोटर ब्रांचेस का एक दफ्तर खुलेगा। नया सिस्टम तैयार कर लिया गया है जो आइंदा मंगल को फॉल कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत टाइम लेने वाले शहरियों को दफ्तर में दाखिले की इजाजत होगी। पहले वक्त ना लेने वालों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स जमा नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में बार रूम्स खोलने की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर मुख्तलिफ बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की मुंतखब ब्रांचेस तो खुल गई हैं, मगर ऑपरेशनल बैंकारी कल से शुरू होगी।
मरकजी बैंक ने ईद उल फितर के मौके पर तवील तातीलात के दौरान अवाम के लिए महदूद बैंकारी खदमात की पूरी तरह दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए बुध के रोज बैंकों को मुख्तसर स्टाफ के साथ मखसूस ब्रांचें खोलने के अहकामात भी जारी किए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने अपनी सवाबदीद पर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कारोबारी मराकज, तिजारती मकामात वगैरह ने बुध को अपनी मुंतखब ब्रांचें खोली रखी। ताहम सार्फिन के लिए बैंकारी की मुकम्मल सहूलियात जुमेरात से दस्तियाब होंगी, जबकि बैंकों के औकात कार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होंगे। शहर में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। सांदा में फेस मास्क पहने डाकू मोबाइल शॉप लूट कर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहर में डकैती की वारदातें ना रुक सकी। अब कोरोना से बचने वाले फेस मास्क डाकुओं ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सांदा के इलाके में मंगल के रोज डकैती की वारदात हुई, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने मनाजिर अक्सबंद कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि फेस मास्क पहने 3 डाकुओं ने राना मोबाइल शॉप पर वारदात की। डाकुओं ने दुकानदार और ग्राहकों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लूटा। दुकान से 4,60,000 नकदी और 24 मोबाइल फोन लूट के फरार हुए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहम ताहाल डाकुओं की शिनाख्त फेस मास्क की वजह से नहीं हो पाई। इरफान मलिक, सिटी 42। पीटीआई रहनुमा नदीम अफजल चंद के भाई एमपीए गुलरेज अफजल चंद के घर से चोर कीमती मलबूसात चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलाजिम जैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात उनकी रिहाइशगाह जौहर टाउन में हुई, जहां चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हुए और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। जबकि गुलरेज अफजल चंद अहले खाना के हमरा ईद की छुट्टियां गुजारने अपने आबाई इलाके गए थे। जबकि नवाब टाउन पुलिस ने गुलरेज अफजल चंद के मुलाजिम जैन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घर में सिर्फ मुलाजिम रहता था और घर से कीमती मलबूसात ही चोरी हुए हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तैयारा हादसे में डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी शहीद समेत दीगर के लिए दुआ की गई। नसीराबाद में यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में सदर MSF राना अरशद ने शिरकत की। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 में एटमी धमाके करके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नैब के जरिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। नैब जो कुछ कर रहा है, नैब के चेयरमैन से मैं गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदारों को अपना आज़ादाना रोल प्ले करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ना कभी पहले डील की थी ना आज की है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो जब ही उनकी सेहत होती है ठीक, वो इंशाल्लाह फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं। राना अरशद और सदर MSF पंजाब शहजाद खान समेत दीगर ने डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स 24 न्यूज़ सैयद अंसार अली नकवी शहीद और तैयारा हादसे में दीगर शहदा के लिए भी दुआ कराई। जो त्यारे केस में 96 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके बुलंद दर्जात के लिए हम दुआ करते हैं। सदर MSF राना अरशद का कहना था कि यौम तकबीर के हवाले से मुल्क भर में MSF के ज़ेरे एहतमाम तकारीब का सिलसिला जारी है, जबकि इस मौके पर केक भी काटा गया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। महकमे खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान 88% हदफ मुकम्मल कर लिया है। ईद तातीलात में भी 12,509 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। सूबा पंजाब में गंदम खरीदारी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब तक 39 लाख मैट्रिक टन से जायद और 88% हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। हमारी गवर्नमेंट की जो हदायत हैं उसके मुताबिक दिन रात स्टाफ ने जो है वो कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह 45 लाख टन का जो टारगेट है वो हम तकरीबन 40 लाख टन जो है ना वो हमने पूरा कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें अभी जारी हैं और इंशाल्लाह ये बकौल जैसे हमारे मिनिस्टर फूड है अब्दुल अलीम खान साहब के बकौल ये है कि इंशाल्लाह ये तारीख का एक बड़ा टारगेट हम अचीव करने जा रहे हैं। मुहिम को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए ईद तातीलात में भी गंदम खरीदारी मराकज खुले रहे और सिर्फ ईद तातीलात में 12,509 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। ईद तातीलात के दौरान हमारे तमाम जो लाहौर के सेंटर्स थे वो खुले थे और ये है कि वहाँ पे कुछ सेंटर्स पे परचेज़ भी हुई है। स्टाफ जो है वो हमा वक्त तैयार था इस काम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम, आज भी हम बैठे हुए हैं, हमारा ऑफिस में स्टाफ मौजूद है और इंशाल्लाह ये परचेज़ के जो मराहिल हैं वो चल रहे हैं।
महकमा खुराक के मुताबिक अब तक 98% बारदाना तकसीम किया जा चुका है। जल्द रवा माली साल का 45 लाख मैट्रिक टन का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अदिल चौधरी, कैमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। पंजाब पुलिस ने अगले माली साल में सालाना खरीदारी के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला और यूनिट्स को 10 जून तक अपनी डिमांड्स भिजवाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल में सालाना खरीदारी के लिए तमाम अजला और यूनिट से डिमांड मांग ली है। आईजी पंजाब ने तमाम अजला को 10 जून तक अपनी अपनी डिमांड भिजवाने का हुक्म दे दिया, जबकि जुलाई में फंड्स के अजरा के मुताबिक खरीदारी के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। रवा माली साल में बरवक्त इकदाम न होने की वजह से 2.5 लाख वर्दी, CTT के लिए मोबाइल टेस्टिंग मशीनें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, जनरेटर्स और वॉक थ्रू गेट्स समेत दीगर अहम अशिया की खरीदारी मुमकिन न हो सकी, जिसके लिए अगले माली साल में बरवक्त इकदाम करने पड़ेंगे। मुतल्लिका ब्रांच का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पुलिस के बजट में 3 अरब का कट लगाने से खरीदारी बुरी तरह से मुतासिर हुई। अगले माली साल में बजट में फंड्स मुख्तस न होने के बाद अशिया की खरीदारी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। आईजी पंजाब ने तमाम अजला के मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी कर दिए हैं, जबकि डिमांड भिजवाने के लिए 20 मई को तमाम अजला के मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग करके तरीक़ाकार वज़े कर दिया जाएगा। DPS स्कूल टाउनशिप के बिलमुकाबिल वाक़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब रहना मामूल बन चुका है। टाउनशिप के मकीनों को पीने के साफ पीने के हसूल में मुश्किलात का सामना है। DPS स्कूल टाउनशिप के बिलमुकाबिल वाक़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब रहना बिल्कुल मामूल बन चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सिंडिकेट का हंगामी इजलास तलब। सिंडिकेट में असातिज़ा की 6 नशिस्तें खाली होने के बावजूद इजलास तलब कर लिया गया। UET ने सिंडिकेट में असातिज़ा की नुमाइंदगी के बगैर ही इजलास तलब कर लिया है। सिंडिकेट में असातिज़ा की मुख्तस 7 नशिस्तों में से 6 नशिस्तें खाली हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।